Can we start? Yeah. Yeah. So, very good morning to everyone. And first of all, I will say Happy Janmashtami, Hare Krishna. And it's an auspicious day, right, today. And yesterday we have witnessed an Independence Day for our country. And a lot more, you can say, promises has been and high spokes has been given by our Prime Minister, right, at Red Fort. And yes, he is also optimistic for the growth of our country. And as a company secretary professionals, we should also be optimistic and should be contributing in the way ahead for the Viksit Bharat, right? 2047. So today's topic is for Posh. And as we know, as a company secretary, it has now become a core area for us. And you can say we can expand our horizon as a company secretary and look forward to our future in this Posh domain. Uh, just there was one question that why we have scheduled this webinar on Janmashtami. There was a very purpose, right? As I believe there have been few teachings of Lord Shri Krishna, which is moreover related to Posh. Like if I talk about like protector, or he was a protector of dignity in the Mahabharata when Draupadi was being disrespected in the court, right? And Krishna protected her, her honor. So Posh too is about also protecting dignity at the workplace. Same way, zero tolerance to injustice. So Krishna always stood against adharma. So Posh also stays here. There should be zero tolerance towards harassment, right, and respect for all. So Krishna always treated women with equality and respect, whether it was Draupadi, Rukmani, or Radha. Right, Posh is built on same foundation, a respectful environment for everyone, and courage to speak up. Right, Draupadi raises her voice when wrong was happening, and Posh also encourages women to speak up and assure them of justice. So I believe this was just a quick gist that yes, why we conducted this very apt topic on this auspicious day. So this was the very particular reason where we can have both the learnings from the Krishna's time till today's, you can say, modern era of corporate world. And to take this topic forward, we have very eminent speaker, Shukla Bansal ma'am. Ma'am, we welcome you. And first of all, we thank you for sparing your time and giving us your time to share a brief and deep insight on this Posh. Thank you so much, Abhinavji. It's my pleasure. Thank you, ma'am. Will not take much time. I know it's a very auspicious day, so we'll just quickly read your profile and then we'll be handing over the complete this webinar to you, ma'am. Miss Shukla Bansal, she is a FCS, FCMA, MCOM, and a POSH trainer. She is a seasoned corporate sector professional, practicing company secretary, a peer reviewer of ICSI, a part-time examiner, and a full-time mother. She holds a BCom honors from Shri Ram College of Commerce, New Delhi, a postgraduate from Delhi University, and is a fellow member of ICSI and the Institute of Cost Management Accountant of India. Her extensive experience of more than 30 years includes senior management position across several leading organizations and more recently her own practice. Shukla ma'am has been a regular contributor of thought papers and research articles to several professional and academic journals and newsletter ranging from technical fields such as artificial intelligence, CSR, to advocating for greater visibility for women professionals. She has delivered POSH training to various educational institutes and corporates and had drafted their sexual harassment policies. In last 3 years, she has conducted POSH training for more than 4,000 people across 10 plus educational and professional institutes as well as corporates. She is acting as a POSH internal committee member for various companies. She has received several accolades, including the Best Participant Award in the Secretarial Modular Training Program, now MSOP, organized by NIRC of ICSI. First prize for the research paper titled GST, a challenging road ahead in 2016 by NIRC, merit certificate for National Online Quiz on IBC 2016, organized by Insolvency and Bankruptcy IBBI in collaboration with mygovernment.in, and has successfully qualified in the online proficiency self assessment test for independent government.
director. She is now an acting independent director in several companies, and she is acting as a speaker on various topics in various seminars, webinars, and even in classroom. Her book on limited insolvency examination is an ode to her continuous inclination towards academics and is bound to arm professionals with a resource that is sure to provide them a head start while preparing for the examination. She is also acted as a member for the Women Empowerment Committee of NISC of ICSI for the year 2024. She is in process of writing her another book on CSR. Ma'am, we welcome you with this immense, I will say, a deep, immense, and a proud profile of yours. We welcome you today for today's webinar and looking forward for your valuable insight on very apt topic. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you so much, Abhinavji, for the lovely words. And happy Janmashtami to all the participants, and a very good morning to all the participants. I don't know, there is a lot of thinking behind keeping this webinar on this particular day of Janmashtami. Well thought, Abhinavji. A very nice thinking behind this, keeping this sports seminar on this Janmashtami day. So friends, I'll start my session so as interactive as possible. I'll be taking up explaining the POSH compliances. First of all, what the POSH Act is, and basically how this has become a career secretary. Like, they are not just focusing on the company law nowadays. There are various areas, like they're focusing on the FEMA, they're focusing on the merger amalgamation, they're focusing on the CSR, they're focusing on the like NCLT hearings and all. So same way, copyright, trademark, there are so many areas now company secretaries are focusing on. So this POSH is also another good area. It's a lot of scope here. Before sharing my presentation, I would like to highlight few points which will figure out that there is a lot of scope for the POSH. I have taken out some data from the Ministry of Companies Affairs website that there are approximately 28 lakhs companies registered on the Ministry of Company Affairs as on date. Normally, the ratio is that 60 to 65% of the companies are considered to be the active. So if it's then still 18 lakhs will be the figure, the companies which are active. So there is a lot of scope. And now we see that most of the company, barring the big company, maybe they were following the POSH compliance, but the small companies, they are not following the POSH compliance. This is not only about the I've taken out the data from the Ministry of Health and the Family Welfare Department that there are roughly 70,000 hospitals are there in India. So there is a lot of scope. And similarly for the college universities, there are approximately, the data I've taken from the Ministry of the Education, there are roughly, you can say 58,000 colleges, universities taken together in India. So there is a lot of scope for the POSH, because POSH is not only applicable to the corporate, it is applicable to hospital, it is applicable to nursing home, it is applicable to educational institution. Everywhere you can think of, POSH is applicable. So there is a lot of scope for the company secretaries. So with this introduction, now I'll start with my slide. In the my PPT, basically I'll be explaining the POSH Act first, because if you want to take POSH as a career, first you need to know the law. Then only you can give the consultation or guidance, and then there are various avenues for the company secretary. So first you need to know the Act. So I'll be taking quickly the Act first, and then I'll be explaining that how there are the prospects for the company secretary, what areas they can do it, how they can merge it with the corporate governance thing. That all I'll be taking up in the later part of my presentation. So just give me a few minutes, I'll be sharing my presentation.
Yeah, I hope my presentation is visible to everyone. Absolutely, ma'am. It's visible. So I'll start with my presentation. The PPT topic is basically the POSH, expanding the career horizon for the company secretaries. I'll be quickly explaining the act now. The objective of my presentation is basically explaining you the POSH Act. POSH means basically creating a safe and respectful workplace. There should be zero tolerance for any kind of harassment. It basically addresses the sexual harassment issues, ensuring the dignity and equality for all the employees. Basically, our constitution also, there are constitutional rights for the equality and dignity of women and equality for everyone. So the POSH Act objective is basically ensuring that only. And it is not just the legal compliance. POSH is not just the legal compliance. It is basically an avenue for the enhancing the workplace culture and the governance for the future company secretaries also. And then I'll be explaining the She-Box portal also. It's a government portal in which we'll be registering. We can register as an organization also, and thereafter the complaint can also be registered. Through this portal, once the organization is registered, it has been given a login ID and the password, and then you can see all your compliances there. Like you can register your IC committee member there. You can see your policy, whatever complaints have been come, everything, your annual return, everything is visible through that portal. Once you get the login ID and password from the government, this portal, She-Box portal. Ma'am, just a moment. If you can just increase the size of the screen, because it's Okay. bit not minimum, very minimum in the Okay, size. okay, So okay. if you can just increase it Yeah. on your from your right side at the end. Now it's okay? Yeah, it's perfectly fine. Okay, okay. So in this POSH Act, basically it maintains its preventive redressal measure against the sexual harassment. And now quickly we'll explain the evolution, how this act has evolved. There was, in 1992, there was a lady called Bhanbari Devi. She was gang raped. She was working in a program of Rajasthan government, and she trying to protect a child marriage. And she was gang raped by a few people. And then her husband tried to take protection under the various act, but there was no specific act under which protection could be taken. And then few NGOs come forward to help them, and they've taken up the matter to the Supreme Court. And then the Supreme Court has come up with this Vishakha guidelines in 1997. The Vishakha guidelines takes care of this sexual harassment, but the implementation of these guidelines was not so good, because it was not an act, it was just the guidelines. So implementation was not very good. People were not fully following all these guidelines. So then different cases was coming back, and then 2012 there was a recent case of Nirbhaya case that everybody is aware of. They came, and then government through Vishakha guidelines, various NGOs have come forward and they forced the government to come out with an act. Then this POSH Act came into picture in 2013. Now we'll be quickly explaining the few definitions that have been used under the Act. The most important definition is what is sexual harassment. Sometimes in a working environment, we can't think of that such a small thing could also come under the definition of sexual harassment. Like you are passing remarks, sexually colored remarks, sometimes in a close friendly group. So we should be very careful in the working environment while passing any comments, that this could also come under the sexual harassment. The definition basically covered that any kind of unwelcome act or behavior which is making someone uncomfortable, that would come under the definition of the sexual harassment. It could be a physical contact or advances. It could be demand or request for the sexual favor, making sexually colored remarks, showing pornography, or it could be any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature that will come under the definition of the sexual harassment. This is basically, you can say, the direct type of sexual harassment. There are some indirect form also.
like implied or explicit promise of preferential treatment in employment. Suppose your boss is expecting, he wants you to stay late with him. There may or may not be any work, but he wants you to stay late. And if you are not staying late, he will say that he will demote you, or he will not give you the increment and all. This is, you can say, the incomplete, indirect form of the like a threat for the detrimental treatment in employment, which an employer is doing. This will also come under the definition of the sexual harassment. Similarly, some favor they are giving because you are agreeing to what he's saying, then there could be some favors they are giving you, like a promotion or increment, which actually you are not eligible for. So this could also come under the definition of the sexual harassment. Similarly, there should be like humiliating treatment at the workplace, or some kind of threat of the present or the future employment, or any kind of like hostile working environment. Hostile working environment, basically the environment which is not very comfortable for a lady to work in. That is also will be coming under the indirect form of sexual harassment. I would, before I take up further, I would just like to highlight that as far as the act is concerned, this POSH Act is concerned, it basically protects all the rights of the women only. But in a company, in the working environment, you can make the gender neutral policies to protect all the, like both the genders, whether it's male, female, or the other gender also, you can protect through making the policy in the organization. And through the IC committee member, you can take their complaint. But as far as the act is concerned, the act basically focuses only on the rights of the female woman only. Now, the aggrieved woman. What is the definition of the aggrieved woman under the POSH Act? Basically, could be working woman or any woman working, visiting to a workplace. It could be student, it could be a domestic worker, it could be regular temporary employee working for remuneration or voluntarily. It could be whether she is employed directly or through an agent or a contract worker or a professional training. Everybody would come under the definition of the aggrieved woman. It's a broad definition. Now we come to the definition of the workplace. Workplace definition is even broader. It covers everything, as I talked about in the beginning of the session. Workplace में सब कुछ आता है. Government organization है, चाहे वो private organization है, चाहे वो NGO है, चाहे वो corporation, company, education institution है, sports है, service provider है, hospitals हैं, cooperative societies हैं. Everything would be covered under the definition of the workplace. वर्कप्लेस की एक्सटेंडेड डेफिनेशन में इवन अगर कोई कंपनी का कोई इवेंट किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में या कोई इवेंट हो रहा है किसी भी जगह पर, तो इवन जिस सेंटर पे वो इवेंट हो रहा है, दैट वुड आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्कप्लेस. या फिर जो है, अगर एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन अपना घर से आने जाने के लिए, तो सो दैट ट्रांसपोर्टेशन वुड आल्सो बी कमिंग अंडर द definition or extended definition of the workplace. And in case this, we are generally talking about the organized sector. जैसे ये हमारी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, एवरीथिंग दीज आर बेसिकली दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जैसे हम अपने घर में कुछ मेड्स भी रखते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर काम करते हैं, दोज आर बेसिकली कमिंग अंडर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ड्वेलिंग प्लेसेस हैं, वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आएंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. So it's a huge scope, and it's a very wide definition of workplace, which is covering each and everything. Now we are coming to the definition of the employer. Employer क्या होता है? बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी में अगर देखें तो उसका जो हेड या ऑफिसर जो भी स्पेसिफाइड है, employer उसे माना जाएगा. In the private organization, any person who is responsible for the management or supervision of the control will come under the definition of the employer. Dwelling units के केस में, जैसे मैंने आपको बताया, घर में या कंस्ट्रक्शन साइट में, उसमें जो पर्सन उनको एम्प्लॉय करता है, जैसे हम मेड्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी विल बी द एम्प्लॉयर. सो ये जो है बेसिकली एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है. नाउ वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई. ये बेसिकली थोड़ी सी हमने अग्रीव्ड वाले
सेक्शन में बता दिया, स्टिल आई एम हाईलाइटिंग इट। वर्कप्लेस की वर्कप्लेस पोस्ट एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि हम पीएफ या ईएसआई एक्ट में डेफिनेशन लेते हैं वो थोड़ी अलग है। उसमें नॉर्मली हम लोग वो एम्प्लॉयज लेते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयड होते हैं फॉर सैलरी एंड वेजेस। इसके अंदर हमारे पास जो भी एम्प्लॉयड है वर्क प्लेस में वो रेगुलर भी हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं, एडहॉक हो सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकते हैं, किसी एजेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो सकते हैं, बिना रेमनरेशन के भी काम कर सकते हैं, रेमनरेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। उनका जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। इट कुड बी अ कोवर्कर, अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, इट कुड बी अ प्रोफेशनल, अप्रेंटिस, ट्रेनी, कुछ भी, सब जो है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएंगे फॉर द पर्पसेज ऑफ द पोस्ट एक्ट। नाउ वी आर कमिंग टू दी आईसी कमेटी। आईसी कमेटी क्या होता है? बेसिकली ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है जो कि पोस्ट के अंदर जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसको रिड्रेस करने के लिए, बेसिकली उनको एड्रेस करने के लिए हम जो है ये कमेटी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आईसी कमेटी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं उनको आईसी कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। और आईसी कमेटी के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? बेसिकली मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए, 4% शुड बी द मेंबर ऑफ द आईसी कमेटी। उसमें जो चेयरपर्सन बोलते हैं या वो जो होता है लेडी होनी चाहिए, वर्किंग एट अ वेरी सीनियर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है कोई सीएमए या एडवोकेट, कोई भी प्रोफेशनल भी इसका मेंबर बन सकता है एज एन एक्सटर्नल मेंबर। सो ये तो हमारा कंपनी के केस में आया इंटरनल कमेटी। अभी जो है लोकल कमेटी भी होती है। अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट या एरिया की बात करें तो वहां पे हमारे को लोकल कमेटी बनती है। और लोकल कमेटी के नॉर्मली 5 मेंबर होते हैं। उसमें जो होता है एक हमारा हेड, जो उस एरिया की जो सीनियर लेडी जो सोशल कॉज के लिए काम कर रही है वो इंटरनल कमेटी के लिए। अब जो है इसका बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी प्रोसीजर क्या होता है? जब कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट जो है वो बेसिकली 3 मंथ्स के अंदर, इंसिडेंट के 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट जो है, कंप्लेनेंट को कंप्लेंट रजिस्टर करने की कंप्लेंट देनी होती है कंप्लेंट कमेटी को। अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है तो जो लास्ट इंसिडेंट है उसके 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट सबमिट होनी चाहिए राइटिंग में। उसके बाद चार्जशीट इश्यू होती है, उसके बाद रिप्लाई होता है चार्जशीट के बारे में, एडमिट या डिनायल। उसके बाद इंक्वायरीज कंडक्ट होती है। इंक्वायरीज का नॉर्मली बेसिस जो है वही रहता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे हम लोग इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। इंक्वायरी में दोनों लोगों को जो है इक्वल चांस दिया जाता है अपना अपना केस रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो रिस्पोंडेंट है या क्लेमर है, या कंप्लेनेंट है। उसके बाद जो है आईसी कमेटी को बेसिकली 90 डेज का टाइम दिया जाता है टू कंप्लीट द इंक्वायरी। और उसके बाद वो लोग अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट के बेसिस पे जो है वो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है कि उसको सीइंग द सीवियरिटी ऑफ द हरासमेंट जो है डिसीजन लिया जाता है कि उसको कंपनी से निकालना है या उसको उसका इंक्रीमेंट रोकना है या उसको प्रमोशन रोकना है या कोई जो है डैमेजेस, फाइनेंशियल डैमेजेस प्रिस्क्राइब करने हैं। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस, हरासमेंट का कितना सीवियरिटी है
इसमें जो है एक, जब तक कंप्लीट इंक्वायरी कमेटी अपनी कंप्लेन इंक्वायरी इनिशिएट करती है, उसके पहले एक चांस दिया जाता है वुमेन को कि अगर वो कंसिलिएशन के थ्रू अपना मैटर सेटल करना चाहती है। इसमें ये नहीं है कि कोई पैसे ले लेके मैटर सेटल होगा। बेसिकली ये है कि एक चांस दिया जाता है कि हो सकता है ये वन टाइम इंसिडेंट है, या फिर जो है थोड़ा सा काउंसलिंग सेशन के थ्रू दोनों को, कंप्लेनेंट को रेस्पोंडेंट को सेटल किया जा सकता है। इफ वुमेन अग्री टू दिस काइंड ऑफ थिंग, तब ये इनिशिएट किया जा सकता है कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स। और अगर इसके थ्रू सेटलमेंट हो जाता है कॉन्सिलिएशन, एंड वुमेन शी डजंट वांट टू गो अहेड विद कंडक्टिंग द इंक्वायरी एंड टेकिंग इट फर्दर, तो ये कंप्लेंट यहीं पे क्लोज हो जाती है। और अगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती तो कंप्लेंट जो है वो इंक्वायरी प्रोसीजर के थ्रू पूरी आईसी कमेटी अपना इंक्वायरी कंडक्ट करती है। 90 डेज तक उनका टाइम होता है, उसके बाद वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, एंड उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लिया जाता है व्हाट इज दी डिसिप्लिनरी एक्शन के बेसिस पे। ये नॉर्मली इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है दोनों की, चाहे वो कंप्लेनेंट की या फिर रिस्पोंडेंट की, दोनों के अगेंस्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। किसी को ऑर्गेनाइजेशन में बाकियों को ऐसे बताया नहीं जाता एक्सेप्ट दी आईसी कमेटी मेंबर्स, या भी जो थोड़े बहुत विटनेस हैं जिनको आईसी कमेटी इंक्वायरी के दौरान विटनेस को बुलाती है, उनसे बातचीत करती है। तो उन सबकी ये ड्यूटी बनती है, इंक्लूडिंग द आईसी कमेटी मेंबर, कि इस सारे को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। जो भी कंटेंट्स है कंप्लेंट के, किसके अगेंस्ट है, क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, एवरीथिंग शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अब जो है जब तक ये इंक्वायरीज कंडक्ट हो रही है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम, 90 डेज का पीरियड जो है छोटा पीरियड नहीं है, इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है। तो उस दौरान में क्या है कि अगर वो, ये भी हो सकता है कंप्लेंट जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो, तो वो सेम बॉस को या सेम एम्प्लॉय को फेस करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसके अंडर काम करना, उसको रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या है, we can prescribe some interim measures also. Interim measures में क्या होता है, we can transfer to the complainant या रिस्पोंडेंट को, किसी को भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरे ऑफिस में, या किसी दूसरी बॉस के अंडर, लाइक उनका रिपोर्टिंग जो है वो चेंज कर दें, ऐसे उनको कर सकते हैं। या जो वुमेन है उसको 3 महीने तक का लीव दिया जा सकता है। दिस इज इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी लीव विच इज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी उनका रूल्स के हिसाब से है। उसके अलावा कोई और रिलीफ, जैसे कि घर से काम करना, रिपोर्टिंग चेंज करना, डिपार्टमेंट चेंज करना, ऐसी चीजें भी की जा सकती हैं। दीज आर द इंटरिम मेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी, जब तक कि इंक्वायरी का फाइनल डिसीजन होता है। अब उसके बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, तो इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है एम्प्लॉयर को। आईसी कमेटी के केस में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर को। और या फिर अगर हम लोकल कमेटी के जैसे केस है, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है उनको विद इन 10 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी। और ये रिपोर्ट जो है फिर वो कंसर्न पार्टी को अवेलेबल होती है। उसके बेसिस पे कंसर्न पार्टी जो है वो डिसीजन लेती है रिपोर्ट के बेसिस पे कि अब क्या करना है, डिसमिल करना है उनको, रिमूव करना है, इंक्रीमेंट रोकना है, कम करना है, या फिर कोई वार्निंग देके छोड़ दें तो चलेगा, या फिर सैलरी कम करना है, या कोई कॉम्पनसेशन देना है वुमेन को डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मेंटल ट्रोमा शी इज गॉन इनटू, एंड कोई लॉस ऑफ कैरियर हुआ उसकी वजह से। बिकॉज ऐसी कंडीशन में स्पेशली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। जब आपका माइंड ही पीसफुल नहीं है, उसमें कुछ कुछ चल रहा है, तो यू कांट वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर एफिशिएंसी। कुछ अगर मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, अगर समटाइम्स कितना सीवियर हो जाता है, कोई मेंटल ट्रोमा जो है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जाए, या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए किसी तरह की, उस केसेस में अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, या फिर कोई इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए वुमेन का कैसा है, उसके बेसिस पे भी कुछ कॉम्पनसेशन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कुछ केसेस में अगर बहुत ही सीवियर है तो क्रिमिनल एक्शन कुड आल्सो बी टेकन, इम्प्रिजनमेंट। एंड द आईसी कमेटी को आल्सो रिकमेंड, इस केस में क्या है, मलिशियस कंप्लेंट। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि जेन्युइन कंप्लेंट की जा रही है सबके, तो उसमें क्या डिसीजन होगा। समटाइम्स क्या होता है, मलिशियस कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट्स या मलिशियस एविडेंसेस, झूठे एविडेंसेस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। अगर पता चल जाए कि झूठा कंप्लेंट किया है या झूठा एविडेंस दिया है,
तो वो मलिशियस कंप्लेंट के लिए भी कुछ पेनल्टीज इन्हीं में से जो हम जैसे ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की जा सकती है कीपिंग व्यू, तो कितना वो सीवियरिटी है उसकी, इसके ऊपर। ये बेसिकली मैंने एक चार्ट में टाइमलाइन सारी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या ब्रॉड टाइमलाइन होती है हमारी। जैसे कि मैंने बताया, कंप्लेन जो है वी हैव टू सबमिट विद इन द 3 मंथ्स। अगर एक ही इंसिडेंट है तो फर्स्ट इंसिडेंट के 3 मंथ्स के अंदर, अगर देर आर अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट तो लास्ट इंसिडेंट के 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लेन सबमिट करनी होती है। कंप्लेन आने के बाद जो है नोटिस रिस्पोंडेंट को दिया जाता है विद इन 7 days ऑफ द कंप्लेंट। उसके बाद जो आईसी कमेटी अपना कंप्लेंट को उनको कंप्लीट करना होता है, 90 days पीरियड होता है, 90 days ऑफ द कंप्लेंट दे हैव टू कंप्लीट द इंक्वायरी। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 10 days, 90 days कंप्लीट होने के बाद 10 days के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन और रिकमेंडेशन के लिए 60 days होते हैं। जो भी डिसीजन हुआ कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो एक्यूज गिल्टी है तो उसको क्या जो है पनिशमेंट देना है, जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया अभी पीछे, उसका इंक्रीमेंट रोकना है, कोई कॉम्पेंसेशन करना क्या है, वो सब हमको विद इन 60 days डिसाइड करना है। अगर स्टिल इस स्टेज पे भी किसी को भी लगता है, कंप्लेनेंट को या रिस्पोंडेंट को लगता है कि जस्टिफिकेशन नहीं हुआ हमारे से, हम सेटिस्फाइड नहीं है जो भी डिसीजन हुआ है, तो दे कैन फर्दर मेक एन अपील विद इन 90 days ऑफ द रिकमेंडेशन। वो फिर इंडियन पीनल कोड के पास भी जा सकते हैं, वहां पे यहाँ पे भी वो कर सकते हैं एक बार, और नहीं तो दे कैन अप्रोच टू द अंडर सीपीसी ऑल्सो, दे कैन फाइल द कंप्लेंट अगर उनको लगता है कि अच्छे से उनका रेजोल्यूशन जो है रिड्रेसल नहीं हुआ है उनकी कंप्लेंट का, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक केस में यहाँ और बताना चाहूंगी, अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही कंप्लेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट, इफ इट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ओनली, तो नॉर्मली समटाइम्स कंप्लेनेंट को लगता है कि अगर हम आईसी कमेटी के थ्रू करेंगे, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ही इज द एम्प्लॉयर, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत बायस्ड होगा। तो विद दैट केस अगर उनको ऐसा फीलिंग है तो दे कैन गो टू द लोकल कमेटी ऑल्सो इन दैट केस, कि यहाँ पे भी दे सकते हैं कंप्लेन, एंड दे कैन अप्रोच द लोकल कमेटी ऑल्सो, जो भी उनका एरिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उनका जो लोकल कमेटी है, उनसे पूछ के उसके उनको भी वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अब जो है सब कुछ कंप्लेंट हो गया। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था हमारा 14 जुलाई 2025 में, कि जो बोर्ड रिपोर्ट में हम डिस्क्लोजर करते हैं पोस्ट के लिए, उसमें नॉर्मली हम पहले ही कहते थे कितना कंप्लेंट था शुरू में, बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना था, रिजॉल्व हुआ कितना एंड में था। उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। उसमें अब जो हमको जो डिस्क्लोजर करना है, उसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट करें कितना आया, कितना डिस्पोज आउट हुआ, कितना कंप्लेंट पेंडिंग था फॉर द मोर देन 90 days, वो भी हमको डिस्क्लोज करना है इसके अंदर अपना बोर्ड रिपोर्ट में। इसके अलावा जो है कई सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं, एक हमारे को पोस्ट के लिए एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ द एरिया, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर आपका ब्रांच ऑफिस। एनुअल रिटर्न भी, और जो पोस्ट पॉलिसी है, जो आईसी कमेटी है, अगर कंपनी के 2-3 ब्रांच ऑफिस और एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो सब ऑफिस के लिए सेपरेटली अलग अलग हमारी रिपोर्ट जाएगी, एनुअल रिटर्न भी अलग जाएगी, आपको पोस्ट पॉलिसी भी सेपरेट बनाना है, और आईसी कमेटी भी आपको सेपरेट बनाना है फॉर ईच ऑफ योर ब्रांच ऑफिसेस। उसके बाद जो है डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम अपील कर सकते हैं, और इंडियन पीनल कोड में भी अपील कर सकते हैं। और नेम्स जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये कॉन्फिडेंशियल रखना है, कंप्लेन किस बारे में है, किसके अगेंस्ट है, और जब भी उसका डिसीजन हो रहा है। अभी जो है कुछ पेनल्टीज भी प्रिस्क्राइब्ड है पोस्ट एक्ट में, सिर्फ यही नहीं है। सो हमारे को एज अ कंपनी सेक्रेटरी वी नीड टू टेल देम, द एम्प्लॉयर्स को हमको और कंपनीज को हमको बताने की जरूरत है। एक तो फॉर द सोशल कॉज ऑल्सो, अगर हम सोशल कॉज देखें तो ये भी है इसके अंदर, हमें टू हैव अ हेल्दी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट विच इज गुड फॉर एवरीवन। उसमें क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। अगर लोग फ्री माइंड से अच्छी तरीके से काम करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट है, सब लोग अच्छे से काम करेंगे टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और अगर ये नहीं होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इनका और दूसरी तरफ अगर उनको डराना है तो पेनल्टीज भी हैं एक्ट के अंदर,
कि भाई आपको जो है अगर किसी भी तरह का वायलेशन है पोश एक्ट में, जैसे कि आपने कमेटी नहीं बनाई, आपने पॉलिसी नहीं बनाई, आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी, आपका कंप्लेंट का रिड्रेसल नहीं हो रहा, और भी जो सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी अगर किसी भी रिक्वायरमेंट का वायलेशन है तो देर इज अ फाइन प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ₹50,000। और अगर रेपिटेशन ऑफ द ऑफेंस फर्स्ट 30,000 है, अगर रेपिटेशन होता है तो ट्वाइस द पनिशमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम, मतलब 1 लाख रुपया हो जाएगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उनका जो लाइसेंस है वो या तो कैंसिल भी हो सकता है या विड्रॉल हो सकता है या फिर नॉन रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ये सब भी हो सकता है इफ दे आर नॉट complying with the all the compliances as prescribed under the POSH Act. So this is as far as the POSH Act is concerned. Now I'll be taking up the role of the company secretary. कैसे इसमें company secretaries के लिए क्या है, जैसे huge role है, मैंने बताया आपको बिगनिंग में, इतने सारी जो कंपनीज हैं रजिस्टर्ड हैं वो सारी की सारी तो फॉलो नहीं करी पोस्ट एक्ट में। अगर हम देखें कि एनुअल रिटर्न का डेटा, अभी मैं आपको अपना कुछ एक ये चार्ट दिखा, इससे पहले एक बार सॉरी एक स्लाइड रह गया, पनिशमेंट फॉर द मैलिशियस कंप्लेंट भी है। जैसे कि बताया था मैंने, अगर झूठी कंप्लेन या झूठे एविडेंस आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप पनिशेबल है। ये नहीं है कि आप इस एक्ट का गलत फायदा उठाएं, ये एक्ट अच्छी इंटेंशन से और अच्छे ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव को हमें ध्यान में रखते हुए ही इसका यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि फीमेल शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस एक्ट कि भाई ये बन गया एक्ट तो कुछ भी करो, हमारे तो फेवर में ही जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर मलिशियस कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट है, फॉल्स एविडेंस है, तो जो है वो एक्ट जो है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं, टर्मिनेशन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का, या फिर रिलेशनशिप एकदम ब्रेक करी जा सकती है, या कोई फाइनेंशियल डैमेजेस प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, काउंसलिंग सेशन भी हो सकते हैं। ये सब सिवियरिटी ऑफ द कंप्लेंट पे डिपेंड करता है। अब ये डेटा की मैं बात करी थी, ये डेटा जो है मैंने सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सीडा का, हमारा अशोका यूनिवर्सिटी का, उन्होंने क्या किया, 300 कंपनीज का डेटा जो कि एनएससी में रजिस्टर्ड थी, वो अपना एनएससी जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वहां से उन्होंने ये डेटा लिया है। डेटा ये 2023 तक है, 22-23 तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 13। ये डेटा हमको ये बताता है, जो रेड लाइन ऊपर दिख रही है आपको वो बेसिकली है जो कंप्लेंट रिपोर्ट हुई है। ये डेटा हमको दिखा रहा है जो कंप्लेंट रिपोर्ट हुई है और जो रिजॉल्व हुई है ओवर दीज नंबर ऑफ ईयर्स। तो एज वी सी डेटा जो है, सिर्फ कोविड ईयर में देखे तो थोड़ा सा डिप आया है, वो इसलिए कह सकते हैं आप क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम दैट टाइम, तो वर्क प्लेस में हो सकता है थोड़ा कंप्लेंट कम रजिस्टर हो, बट स्लोली स्लोली इफ यू सी कंप्लेंट जो है वो बढ़ रही है। इसका क्या हो सकता है, दो इससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। एक तो ये कि अवेयरनेस बढ़ रही है, कंप्लेंट तो पहले भी होती थी बट पीपल वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट। वो सोचते थे कि भाई कोई फायदा नहीं है, कुछ होगा नहीं, या डर की वजह से वो आगे नहीं आते थे, दे डोंट स्पीक अप। एक तो ये रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि केसेस वैसे भी बढ़ ही रहे हैं, थोड़े थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ रेजोल्यूशन भी हो रहा है, but still there is a gap in the resolution, so we had to speed up, the government authority, like IC committee member should be trained properly for that, so that उनको properly पता चले कि resolution कैसे करना है। उसके लिए जरूरत होती है कुछ स्किल बिल्डिंग या कैपेबिलिटी वर्कशॉप की, स्पेशली फॉर दी आईसी कमेटी मेंबर। अभी तक क्या होता है, हम नॉर्मली जो है ट्रेनिंग सेशन करते हैं स्टाफ मेंबर्स के बारे में, एम्प्लॉयज के लिए करते हैं पोस्ट में, उनको बताने के लिए कि पोस्ट एक्ट क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये क्या है। बट हमारे को जो है आईसी कमेटी मेंबर जो एक्चुअली को कंप्लेंट को रिजॉल्व कर रही हैं, वो भी क्या है, दे आर एम्प्लॉयज अमंग दी, लाइक एम्प्लॉयज हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ही उनको उठाया गया है, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं। तो उनको थोड़ा सा सिखाने के लिए हाउ टू हैंडल द कंप्लेंट, तो कुछ हमको स्किल बिल्डिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है आईसी कमेटी को, जिनको जहां पे हम उनको समझा सकते हैं कि कैसे कैसे कंप्लेंट है, कैसे नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर को यूज करके वो कैसे कंप्लेंट हैंडल कर सकते हैं। दैट आई एक्सप्लेन थोड़ा उसका पार्ट। ये डेटा बेसिकली इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसमें नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, बढ़ रही हैं, और नंबर ऑफ कंप्लेंट रिजॉल्व हो रही हैं, ऐसे नहीं है, बट देयर इज अ स्टिल गैप।
एक और डेटा मैंने उठाया है, ये वाला भी सेम वहीं से मैंने, डेटा सोर्स वही है मेरा, अशोका यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट का। इसमें हमने दिखाया है, जो रेड वाला आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि कंप्लेंट कितना रिपोर्ट हुई है, और जो छोटी ब्लू ब्लॉक्स हैं वो बता रहे हैं नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने वो कंप्लेंट रजिस्टर करी है। तो आप देखें नंबर ऑफ कंपनीज कितनी कम है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज। कंपनीज कंप्लेन जैसे जैसे बढ़ रही हैं, अगर हम देखें इतनी सारी हमारी कंपनीज हैं एमसीए पे रजिस्टर्ड, तो कंप्लेंट, ये 300 कंपनीज का डेटा उन्होंने लिया, 300 में हार्डली हम देखें तो 81 हमको लास्ट उसमें दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ कंपनीज ने केस रिपोर्ट किया, आउट ऑफ 300 सिर्फ 81। तो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, लाइक कंपनीज जो है रिपोर्ट नहीं कर रही है बिकॉज वो कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं कर रही है। सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द कंपनी सेक्रेटरी इन दिस एरिया। अब ये रोल क्या क्या कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट कंप्लायंसेस में क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट पॉलिसी को ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हैं। पोस्ट पॉलिसी ये नहीं है कि कट पेस्ट करा, एक का उठाकर दूसरे में डाल दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सेटअप है, कहाँ कहाँ उनके ऑफिसेस हैं, कितना फैला हुआ है, किस बिजनेस में है, उसके बेसिस पे उनके लिए क्या क्या एरियाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दैट वी नीड टू फिगर आउट, और वो हमको उस हिसाब से उनकी पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए, या फिर हमको उसको रिव्यू करना चाहिए अगर ऑलरेडी ड्राफ्टेड पॉलिसी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की क्या है कि हमको देखना है कि वहां पे आईसी कमेटी है कि नहीं। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसी कमेटी वेदर इट्स एग्जिस्ट और नॉट, है कि नहीं है। अगर है तो प्रॉपरली उनका फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आईसी कमेटी नहीं है तो हमें सबसे पहले आईसी कमेटी बनानी है, और उसके लिए हमको जो है कुछ नेसेसरी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं। प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू आपको आईसी कमेटी बनानी होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी उसका टेन्योर पूरा होगा 3 साल के बाद, फिर दोबारा से आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन होगी, ताकि वो प्रॉपर बोर्ड अथॉरिटी के साथ है। सो ये हमारा, और जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल कमेटी का रिक्वायरमेंट क्या है, 4 मेंबर होते हैं कंपनी के केस में, 4 मिनिमम मेंबर हो सकते हैं इंटरनल कमेटी के। उसमें जो मेन हमारे चेयरपर्सन होंगी वो सीनियर लेडी होंगी, 2 बीच वाले जो हैं कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं, और जो 4th एक्सटर्नल मेंबर है वो आप बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। सो दिस इज बेसिकली, और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ हमको आईसी कमेटी को ट्रेन करने की जरूरत है, वो भी हमारे में से ही, कुछ एम्प्लॉयज में से ही, ऑर्गेनाइजेशन में से ही बने हैं, वो कोई बाहर से तो आए नहीं है। सो वी नीड टू ट्रेन देम कि थ्रू द वर्कशॉप कैपेबिलिटी या स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करके, कि ये जो कंप्लेन रिड्रेसल प्रोसीजर जो है वो कैसे करना है। नॉर्मली हम लोग मॉक सेशन करके एक्सप्लेन करते हैं, अगर फिजिकल सेशन होता है तो मॉक सेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे हम लोग रिजॉल्व, ये कंप्लेंट सिनेरियो आया, एक रिस्पोंडेंट को हमने नोटिस दिया, फिर कैसे है वो आईसी कमेटी पे पहुंचा, उसको क्या क्या करना है। अगर विटनेस है तो सबसे पहले उनको विटनेस को बुला के उनसे बातचीत करना है थोड़ा सा, और अगर सीसीटीवी कैमराज या कुछ इस एरिया में अवेलेबल है तो वो देख के देन दे हैव टू फिगर आउट कि क्या एग्जैक्टली, सो दैट ऑल द इंटरनल कमेटी का रोल है, उनको क्या क्या करना है। उसके बाद जो है क्या काम है, पोस्ट कमेटी कंपनी सेक्रेटरीज का क्या रोल है, फैसिलिटेट करना ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ये जो कैपेबिलिटी एक्सरसाइजेस मैं बोल रही हूँ ये भी कंपनी सेक्रेटरी ही ऑर्गेनाइज करेंगे, वो ही समझाएंगे, और नॉर्मली ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे बाकी लोगों को, एम्प्लॉयज को समझाने के लिए अबाउट द पॉश एक्ट, ट्रेन करने के लिए क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सो दैट कि आम लाइफ में आप ऐसे ही जोक्स पास करते हैं या ऐसे बैठे हुए हैं फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज दैट इट कुड आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड देन उसके बाद मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस है, उसमें क्या है हमको, जैसे मैंने बताया कि हमको एक तो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना है अपना, और उसके बाद हमारे को कंपनी की वेबसाइट पे सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, आईसी कमेटी मेंबर्स होने चाहिए, कंपनी का वेबसाइट जो कंपनी का नोटिस बोर्ड है वहां पे हमको पॉलिसी और आईसी कमेटी की डिटेल विजिबल होनी चाहिए। सो ये सब मॉनिटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है जो कि कंपनी सेक्रेटरी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने सिर्फ उसके कि आप बियॉन्ड कंप्लायंस भी कोई स्ट्रेटेजिक रोल कंपनी सेक्रेटरी प्ले कर सकते हैं। कैसे? दे कैन इंटीग्रेट द पोस्ट इनटू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आल्सो। कैसे करेंगे? जैसे कि पोस्ट इनिशिएटिव को हम ईएसजी या सीएसआर गोल्स के साथ अलाइन कर लें। सीएसआर में क्या होता है, कंपनी को अपना 2% इन्वेस्ट करना है किसी भी
जो है अपनी सोशल एक्टिविटी जो कि हमारे शेड्यूल में स्पेसिफाइड है उनमें से किसी एरिया में, तो इट कुड बी फॉर दी फीमेल डेवलपमेंट, वुमेन के उसके लिए हो सकता है। ऐसे ही जो ईएसडी है, जब ये हेरासमेंट को हम अवॉइड कर रहे हैं तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन ईएसडी एनवायरमेंट, लाइक सस्टेन सोशल गवर्नेंस के अंदर से उससे लिंक कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन दी नेक्स्ट ग्राफ के थ्रू में। उसके बाद हम लोग जो है कुछ पीरियोडिक पॉलिसी ऑडिट्स कर सकते हैं। पॉलिसी ऑडिट में हम क्या करेंगे, पॉलिसी ऑडिट में हम देखेंगे उनकी कमेटी प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपना जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई उनके कंप्लेंट का कोई ड्राफ्ट बना हुआ है, या मिनट्स ऑफ द आईसी कमेटी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। आईसी कमेटी हो रही है तो उनकी मीटिंग्स के मिनट्स भी बनेंगे। तो वो सब रिक्वायरमेंट है। और कुछ आप कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ और फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उनकी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को ऑडिट कर सकते हैं, प्रॉपर है। जैसे उन्होंने कोई और रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस ऐड करे हैं तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या ब्रांच ऑफिस के लिए पॉलिसी है या नहीं है, आईसी कमेटी बनी हुई है कि नहीं है, आईसी कमेटी का टेन्योर पूरा होने के बाद भी वही सेम आईसी कमेटी तो नहीं चली जा रही, वी नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट इट। सो वो सब हम पॉलिसी ऑडिट के थ्रू पता कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन प्रमोट वर्क प्लेस कल्चर जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज सेफ हैं एंड दे कैन स्पीक अप। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है सो दे कैन कम फॉरवर्ड। अब हम ये जो अपने पोश इनिशिएटिव्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में, वो मैंने इस चार्ट के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश की है। बेसिकली क्या है, सबसे पहला है बोर्ड ओवरसाइट है। उसमें क्या है, पोस्ट कंप्लायंसेस हैं, उसका रिव्यू हम अपना उसका बोर्ड कमेटी और एजेंडा मिनट्स में भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो होती है वो आईसी कमेटी की मीटिंग्स अलग होती हैं, बट अगर हमको उसको अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस उससे अलाइन करना है तो हम उसके अंदर भी उसका रिव्यू ले सकते हैं कि भाई इस साल में वो पोस्ट में क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर। उसका एक छोटा ब्रीफ नोट वी कैन इंक्लूड इन द पोस्ट दिस बोर्ड मीटिंग्स ऑल्सो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे हरेसमेंट को हम जो है ईएसडी की रिस्क की तरह ले सकते हैं, या इसमें रेपुटेशन रिस्क भी है ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्क कल्चर नहीं है तो उसका रेपुटेशन, तो अगर कोई एम्प्लॉय ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा और लोगों को पता चलेगा ये कंपनी का तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा ही नहीं है, यहाँ तो बहुत ऐसा ये हरासमेंट का कंप्लेन रहता है, तो रेपुटेशन ऑफ कोर्स इज एट स्टेक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो रेपुटेशन रिस्क है, वो वी कैन कवर, वी कैन मर्ज विद द रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उसको हम ले सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी प्रोविजंस हैं हमारे, उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी के साथ लिंक कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर के अंदर हम कह सकते हैं कि हमको जैसे पोस्ट में कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर है हमने करने हैं, कि हमने अपने वेबसाइट पे दिखाना है या बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, या हमने एक इसका जो कंप्लायंस है एनुअल रिपोर्ट एक जाना है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, वो सब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स है वो हम उसके अंदर उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड लीडरशिप, इसमें क्या है कि कंपनी में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे लीडरशिप केपीआईज हैं, उससे लिंक कर सकते हैं हम वर्क प्लेस सेफ्टी को एक पर्टिकुलर मैनेजर के की लीडरशिप स्किल्स से, कि उसके अंडर जो है कितने केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आ रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसकी केपीआई से हम लिंक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से। सिमिलरली ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी एक्सरसाइजेज, बिल्डिंग एक्सरसाइजेज जो हैं मैंडेटरी है पोस्ट ट्रेनिंग स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर पॉलिसीज होती हैं, उसमें हम इसको पोस्ट कंप्लेंट को उसके साथ अपना एथिक्स हॉटलाइन के साथ, अपना जो ऑर्गेनाइजेशंस की एथिक्स हैं पॉलिसीज हैं उसके साथ हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पोस्ट कंप्लेंट्स को, कि कम से कम पोस्ट कंप्लेंट आए, सो दैट अच्छा एनवायरनमेंट, या फिर आ रही है तो ये जो है किस वजह से क्या है, वी नीड टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर एरिया सो दैट वी कैन टेक द करेक्टिव एक्शन। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, वी नीड टू रिव्यू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिव्यू द कंप्लेंट डेटा, ट्रेंड्स जो है कैसे चल रहे हैं, प्रिवेंशन का, कंप्लेंट ज्यादा आ रही है नहीं आ रही है या कम हुई है, continuously we need to analyze the data from time to time. So this way we can integrate the post into the corporate governance practices also. So it's not just the post, so we have now the large view, larger view.
नाउ दी कैरियर अपॉर्चुनिटीज की तरह अगर हम देखें फॉर द कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली, तो कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं दे कैन एक्ट एज दी पोस्ट कंप्लायंस ऑफिसर। पोस्ट कंप्लायंस ऑफिसर बन के वो किसी भी कंपनी में उनकी पॉलिसीज को, सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी को ओवरसी कर सकते हैं, उसका एडहेरेंस देख सकते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। दे कैन बिकम द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी। ये उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। दे कैन बिकम द पोस्ट ट्रेनर, ट्रेनिंग सेशन दे दे के दे कैन बिकम अ creating awareness, they can become the post trainer, they can become the policy consultant also। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट पॉलिसीज या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जहां पे उनको लगता है वीकनेसेस है, उनको हाईलाइट करके पॉलिसी में, या फिर उनको उनके बिजनेस के साथ लिंक करके, या फिर कोई जो उनको लगता है एरिया जहां पर स्कोप है उसको करने का, दे कैन बिकम द पॉलिसी कंसल्टेंट। और दे कैन बिकम द इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स ऑल्सो। जैसे स्टार्टअप एनजीओज है, कंप्लायंसेस कर रही है, उनको स्टार्टिंग में अगर नहीं पता है तो उनको गाइड कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज एन independent advisors for them also. So there are a lot of career opportunities for the company secretaries in this post area. Now what all skills are required? ये सब काम करने हैं तो कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। कुछ तो स्किल्स हमें हैं, कुछ वी नीड टू एक्वायर। जैसे कि सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको एक्ट एक्सप्लेन किया है। आपको सबसे पहले एक्ट का जो है सब चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप, अगर आपको खुद नहीं पता तो आप कैसे किसी दूसरे को गाइड करेंगे। सो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दी लीगल फ्रेमवर्क प्रॉपर उसका। और आप में ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू ड्राफ्ट दी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, सो यू शुड हैव द ड्राफ्टिंग स्किल्स फॉर दैट। देन यू शुड हैव द इंटरव्यूइंग स्किल्स, क्योंकि आईसी कमेटी का मेंबर बन के आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा रिस्पोंडेंट को, कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को। तो कुछ सेंसिटिव केसेस भी होंगे, तो इंटरव्यूइंग स्किल होनी चाहिए। जैसे कि जो मैंने डूज एंड डोंट्स में बताया, कुछ ऐसी चीज नहीं यूज करनी जो दूसरे को हर्ट कर जाए, या फिर आप वो ग्राफिकल उसका एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाए उससे सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो कि किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सो ऐसी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए सेंसिटिव केसेस में, स्पेशली बाय इंटरव्यूइंग द कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट या फिर विटनेसेस को। उसके बाद एम्पैथी और न्यूट्रलिटी हमारे इन्वेस्टिगेशन में, हमारे के सहानुभूति और हमारा जो है अनबायस्ड एटीट्यूड होना चाहिए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हमें किसी भी पार्टी के साथ बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली अनबायस्ड माइंड और एटीट्यूड के साथ हमको केस को एनालाइज करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दैट स्किल वी नीड टू एक्वायर। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ना, वो फॉलो करना होता है बेसिकली। उसके बाद ट्रेनिंग स्किल्स। ट्रेनिंग देना आसान काम नहीं है। सम पीपल दे कांट हैंडल सो मेनी पीपल, ऑडियंस को हैंडल करने में उनको थोड़ा डर लगता है या फिर हेसिटेशन होता है। सो वी हैव टू कम फॉरवर्ड। छोटे छोटे, टू स्टार्ट विद छोटे छोटे ग्रुप्स में आप ट्रेनिंग देके अपना हेसिटेशन निकाल सकते हैं। और देन when once you are comfortable then you can go to anywhere, it's not a big thing। हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हमने, हमारे पास स्किल्स हैं और बहुत सारी। सो ये वाली स्किल भी है हमारे में, अब थोड़ी सी हमको पॉलिश करने की जरूरत है। वी कैन डू दैट आई थिंक। सो ये सब स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत है कंपनी सेक्रेटरी को इन दिस एरिया। अब एक लाइव एग्जांपल हम थोड़ा सा छोटा सा लेके, और इसमें थोड़ा सा वही बेसिकली तो बातें वही है यार, समराइजिंग कि कैसे कैसे हम लोग इसको कंप्लेंट्स को इसमें हैंडल करेंगे, या क्या क्या एरिया हम लोग देखने की जरूरत है हमें। ये एक 2024 का एग्जांपल है। आईटी कंपनी बैंगलोर की है। उसने एक पोस्ट कंप्लेंट आई थी एक फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। उसने कहा कि उसका जो टीम लीड है वो बारी बारी वो अनवेलकम कमेंट्स करता है उसकी अपीयरेंस के बारे में, एंड ही क्वेश्चन हर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आल्सो। तो ये केस था। इस केस में बेसिकली जो एस्केलेशन हुआ था वो ये था कि आईसी कमेटी जो थी वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी, और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। पास्ट 18 मंथ से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। और कंप्लेनेंट जो था वो फियर रिटेलिएशन और हेसिडेंट था। वो उसको लग रहा था कि डर था, मतलब वो फीमेल कंप्लेंट करने में शी वॉज नॉट, अंदर से उसको डर था, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, पता नहीं ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। सो इस केस में हमने क्या क्या हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे
हमको जो है इंटरनल कमेटी दिख ही रहा है कि प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले तो पहले ये देखने की जरूरत है, कंप्लायंस चेक करना है। कंप्लायंस चेक में क्या करेंगे हम, देखेंगे कि आईसी कमेटी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुई है नहीं हुई है। नहीं हुई है तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने अर्जेंट बेसिस पे जाके आईसी कमेटी वी नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट, ओ सॉरी कॉन्स्टिट्यूट, पहले बनी नहीं है तो रिकॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे। और उसके बाद हमको वो बोर्ड अप्रूवल से करनी है। मैंने आपको बताया बोर्ड रेजोल्यूशन प्रॉपरली पास करके एंड देन वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूट द आईसी कमेटी। दूसरा काम क्या करेंगे हम, पॉलिसी एक्टिवेशन। पॉलिसी एक्टिवेशन में क्या करना है, हमने देखना पड़ेगा उनका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है वो रेडिली अवेलेबल है कि या एक्सेसिबल है कि नहीं है। कंप्लेन जो है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हुई है कि नहीं हुई है। और प्रोविजन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है हमको इसमें। ये सब बातें हम पहला इसमें पॉलिसी एक्टिवेशन में चेक करेंगे। तीसरा है हमारा फेयर एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, हमने जो है बीइंग एन एक्सटर्नल मेंबर हम आईसी कमेटी को सपोर्ट कर सकते हैं इन इशूइंग द नोटिस, शेड्यूलिंग हियरिंग या फिर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स। और हमको टाइमलाइंस का बेसिकली ध्यान रखना है। हमने इसमें बताया कि आईसी कमेटी को 90 डेज का टाइम दिया जाता है। बेसिकली दे हैव टू कंप्लीट देयर इंक्वायरी प्रोसीडिंग विद इन 90 डेज। तो वो टाइमलाइंस हमें देखना है कि वी शुड नॉट एक्सीड द टाइमलाइन। और वी नीड टू एंगेज कि फेयर और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो एक एक्सटर्नल मेंबर को, जो कि आप भी हो सकते हैं, पोस्ट कंसल्टेंट की तरह हायर करना है सो दैट वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन लाके थोड़ा सा हेल्प करे टू मेक इट फेयर एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट है बोर्ड लेवल रिपोर्टिंग्स। बोर्ड लेवल रिपोर्टिंग में हमने देखना है कि पोस्ट का क्या स्टेटस है, कंप्लेंट कंप्लायंस नोट वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। रिस्क जैसे हमने अभी बोला, कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लिस्ट कर सकते हैं, तो रिस्क में, रिस्क पॉलिसी में कहीं वो डाल रहे हैं अपना। ट्रेनिंग गैप्स को हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ट्रेनिंग किस फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं, नहीं करी, क्यों नहीं करी है, इसलिए अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो लेडी वॉज हेसिडेंट, उसको पता ही नहीं था। कम ट्रेनिंग करेंगे तो हम उसमें बताते हैं ट्रेनिंग में कि कंप्लेंट जो है आप आईसी कमेटी के मेंबर्स, उनका जो डिटेल्स है, उनका ईमेल आईडी है, सब कुछ जो है नोटिस बोर्ड पे कंपनी के डिस्प्ले करना पड़ता है आपको। वहां से एनीबडी कैन अप्रोच देम कि अगर उनका कोई कंप्लेंट है तो वो फाइल कर सकता है। और कंप्लेन जो है वो कंप्लेनेंट सिर्फ अपने आप ही नहीं, उसको सो मेनी पीपल कैन हेल्प दी कंप्लेनेंट टू फाइल द कंप्लेंट। वो कोई भी उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई विटनेस हो सकता है, कोई टीचर, कोई साइकाइट्रिस्ट, कुछ कोई भी उनका जो है हेल्प कर सकता है कंप्लेंट फाइल करने में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कल्चरल और प्रिवेंटिव एक्शन। उसके अंदर क्या है, हमको रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको रोल आउट करने की जरूरत है। या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अनोनिमस ग्रीवियंस चैनल को यूज कर रहे हैं। ये तो है ही है एक चैनल हमारा, और कुछ अनोनिमस चैनल्स के थ्रू भी हम कंप्लेंट ले सकते हैं। रिकमेंड करें इंक्लूजन ऑफ दिस पोस्ट कंप्लायंसेस इन दी एनुअल गवर्निंग रिपोर्टिंग, ताकि अगर एनुअल गवर्निंग रिपोर्टिंग में आएगा तो वो हाईलाइट रहेगी और उस पर एक्शन होता रहेगा। अदरवाइज वो छोटे मोटे एक्ट की तरह, नहीं तो कंपनीज उसको, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। So these type of role as a company secretary we can play in case of in this live example case. अब इसमें challenges और solutions दोनों हैं। challenges वही है, fear of retaliation हर जगह रहता है, लोग आगे नहीं आते बढ़ के बोलने के लिए। तो उसमें हम अगर कोई anonymous reporting channel चालू करेंगे तो हो सकता है उन्हें लगे किसी को पता नहीं चल रहा, दे शुड कम फॉरवर्ड, आएंगे बताएंगे अपना कंप्लेन। बायस इन्वेस्टिगेशन का चैलेंज रहता है, तो उसको हम एक्सटर्नल, जैसे हमने मेंबर बोला है, हुज एन आउटसाइडर, उसको लाने से जो है हम बायसेस को रिड्यूस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। और जैसे मैंने बताया कि अगर कंप्लेंट इस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है तो हम लोग इंस्टेड ऑफ रेफरिंग इट, अगर कंप्लेनेंट चाहता है इंस्टेड ऑफ रेफरिंग इट टू द आईसी कमेटी, दे कैन रेफर इट टू द लोकल कमेटी ऑल्सो। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है इसके बारे में, ये एक्ट के बारे में, इसकी कंप्लायंसेस के बारे में। ये सिर्फ एक कंप्लायंस ही नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, for enhancing their productivity, for enhancing their reputation. It is for the social cause also. So we need to make everybody aware of it. उसके बाद है मैनेजमेंट रेजिस्टेंस भी होता है समटाइम्स।
उसमें मैनेजमेंट रेजिस्टेंस है, तो हमको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनको लिंक कि भाई ये जो सेफ अगर वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, उनका उनका प्रोडक्टिविटी से क्या लिंक है। उनको तो नंबर से समझ आते हैं ना, एबिटा कितना है भाई, नेट प्रॉफिट कितना है भाई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है, तो वो सब समझ में आता है। तो उनको उसी तरह से समझाना है, जिसको जैसे समझ में आता है वी नीड टू टेल हिम दैट वे ओनली, वो उसको जल्दी समझ में आएगा। So these are the challenges and the solutions for the company secretaries to take it forward as a career avenue. अब मैंने कुछ एक्शन प्लान भी बनाया है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स के लिए, और फिर उसके बाद ये भी बताऊंगी कि थोड़ा स्लोली मैंने एक छोटा सा वो बनाया है कि कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें। तो अभी एक्शन प्लान क्या है, पोस्ट पॉलिसी का रिव्यू करें, उनके गैप्स को आइडेंटिफाई करें, इंटरनल कमेटी बनाएं या उनको ट्रेन करें, एम्प्लॉइज को ट्रेन करें, रिपोर्ट और मॉनिटर करें कंप्लायंसेस को, नेटवर्क करो योर सेल्फ एज अ पोस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर उसको आप करोगे तभी लोगों को पता चलेगा, तभी वो आपको अप्रोच करेंगे फॉर दी पोस्ट कंप्लायंसेस के लिए। पहले आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने की भी जरूरत है। नेटवर्किंग नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी आपको काम मिलेगा ज्यादा ज्यादा नेटवर्किंग के थ्रू। ये एक ब्रॉड प्लान मैंने थोड़ा सा एक अप्रोच बनाया है दैट हाउ टू अप्रोच दी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। ये वैसे सबको पता है, मैंने फिर भी अपने बेसिस पे थोड़ा सा एक स्पेशली फॉर द न्यू कंपनी सेक्रेटरी, इट कुड बी जो एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी है। नॉर्मली आप कोई भी अपना नॉट पोस्ट को एक मिनट को छोड़ भी दें, आपने कोई भी काम के लिए, कोई भी असाइनमेंट के लिए, यू हैव टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ना। तो वो नॉर्मली आप इसी तरह की अप्रोच को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या है, रिसर्च बिफोर रीचिंग आउट अ क्लाइंट, मतलब नो योर क्लाइंट फर्स्ट, नो क्लाइंट बिजनेस फर्स्ट। उनके गवर्नेंस गैप, अगर आप पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को अप्रोच करना चाहते हैं, पहले उसको अच्छे से उसका वेबसाइट को उसको पढ़ें, उसके बारे में जानें, बिजनेस के बारे में, उसके जो गवर्नेंस गैप्स हैं उनको देखें। ऑलरेडी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी तो इनकी है ही नहीं है वेबसाइट पे, देखा, अगर है तो डाली नहीं है वेबसाइट पे, मैंने देखा। सो दैट वी हैव टू, या पब्लिक फाइलिंग स्टेटस क्या है उनका, फाइलिंग जो है नॉर्मल हम अपना एमसीए पर फाइलिंग से तो वो देख सकते हैं, बट एनुअल रिपोर्ट का फाइलिंग का डेटा अभी तक किसी भी साइट पे मिलता नहीं है। मैंने आई ट्राई टू फाइंड आउट बहुत कि भाई ये जो पोस्ट की जो एनुअल रिपोर्ट है, ये जो फाइल करी है, कितनी कंपनीज ने फाइल की है, उसका डेटा आई कुड नॉट फाइंड। तो बेसिकली हमको गैप्स ही देखने पड़ेंगे कंपनीज के, सो वी कैन अप्रोच दैट वे। देन बिल्ड अ वार्म एंट्री पॉइंट, नेटवर्किंग के थ्रू, म्यूचुअल कंटेंट्स के थ्रू, लीडरशिप्स के जैसे आर्टिकल लिख के या कुछ वेबिनार्स करके या फिर कुछ कंप्लायंस अपडेट्स रेगुलर आप भेजेंगे, तो उससे आपका थोड़ा सा एक एंट्री पॉइंट होगा, नेटवर्किंग होगा। तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड जो है, यू हैव टू हाईलाइट योर यूनिक प्रपोजिशन। सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं, सबके पास सब चीजें हैं, आप में क्या यूनिक है, आपको क्यों हायर करे, आपको कोई क्लाइंट क्यों कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट दे, देन यू नीड टू हाईलाइट योर एक्सपर्टाइज कि मेरे में ये इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज है, मैंने ये काम किया, या मेरे में कोई स्पेशलाइज सर्विस मैं आपको दे रही, या कोई सक्सेस स्टोरी है, आई हैव ऑलरेडी डन इट, तो कुछ तो है। सो दैट यू नीड टू हाईलाइट। उसके बाद इनिशियली यू नीड टू ऑफर द फ्री सेशन ऑल्सो, या फिर लो कमिटमेंट सर्विसेज दें इनिशियली, क्योंकि आपको ज्यादा कमिटमेंट नहीं हो और आप पैसे भी चार्ज नहीं करें, फ्री टू समटाइम यू टू डू इट। सोशल की तरह भी करें, किसी तरीके से करें, उसमें एक तो आपका जो है हेसिटेशन निकल जाएगा ट्रेन करने का, और दैट वे, और कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, सो दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। उसके बाद फॉलो प्रोफेशनली। अब जैसे ये आपने किसी पर्टिकुलर बिजनेस का आइडेंटिफाई कर लिया, थोड़ा बहुत आपने उनको रेगुलर अपडेट भेजे, आपको लग रहा है कुछ हो सकता है, तो आपने उनको प्रपोजल भेजा, या कोई लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, या फिर समराइज किया आपने अपना उनसे लास्ट जो आपका डिस्कशन हुआ, तो समराइज करके कुछ भेजे। उनके टच में रहें, इवन इफ दे आर सेइंग नो, यू नीड टू नर्चर द रिलेशनशिप। इट्स अ कंटिन्यूस थिंग, ऐसे नहीं है कि एक बार करेंगे और उसने मना कर दिया और आप बैठ जाओ भाई यहाँ तो मुझे कुछ मिलना नहीं। So it's a continuous process. You have to do it. One day you will, of course, you will get it. So ये एक छोटा सा approach, I think, the company secretary can follow. The new company especially, they want to go into this field of course. It's a very interesting field. I really love this field.
अब इसमें की टेक अवे क्या है? इट्स बोथ स्टैट्यूटरी मैंडेट है, कैरियर एनहेंसमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऑफ कोर्स है, सोशल कॉज भी है इसके लिए। यू आर डूइंग, यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। एक अगर हेल्दी, सेफ्टी, जीरो टॉलरेंस, हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, तो दैट इज, आपको अंदर से एक अच्छा फीलिंग भी आता है। सो आई थिंक दिस अ ग्रेट फीलिंग। CS प्रोफेशनल्स कैन इन्फ्लुएंस द वर्क सेफ्टी कल्चर, और जो है वो एक्टिव पोस्ट एंगेजमेंट से दे कैन बूस्ट द गवर्नेंस क्रीडेंशियल ऑल्सो। सो दोनों चीजें हो रही हैं इससे, आप गवर्नेंस को भी कर रहे हैं, आपका सोशल कॉज का भी फुलफिलमेंट हो रहा है, आपका कैरियर एडवांसमेंट भी हो रहा है, और आप पैसे भी कमा रहे हैं। आप इसको, अगर यू आर टेकिंग इट एज अ कैरियर, सो यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो। सो दीज आर बेसिकली द की टेक अवे फॉर दिस। ये मैंने कुछ जैसे कि पोश में नॉर्मली जो है कुछ लीडिंग केसेस होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको एक्ट में कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी एरिया के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन से साफ नहीं हो रहा, बट कोई लीडिंग केस है उससे, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारे लीडिंग केसेस हैं रिलेटिंग टू केस जजमेंट्स हैं फॉर द वेरियस डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज को कवर करता है। मैंने एक दो क्विकली ली हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई sometime you need to refer the case laws also for the any kind of redressal के लिए, या sometime कुछ एरिया में आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे ये एक सपना मुझे का केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें बोला था कि जो है इवन क्रिएटिंग एंड इंटीमीडिएटिंग वर्क एनवायरनमेंट फॉर अ वुमेन इन वर्क प्लेस ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्शुअल हेरासमेंट। जो इंटीमीडिएटिंग वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है? वही हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल नहीं है। आप, कोई लेडी काम कर रही है, कोई बंदा आके उसके ऊपर से खड़ा होके ऐसे झांकेगा, विच इज मेकिंग हर अनकंफर्टेबल, या उसका दुपट्टा अरेंज कर रहा है इधर उधर, सो विच इज मेकिंग हर अनकंफर्टेबल। सो दैट वुड ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस सेक्शुअल हेरासमेंट। सिमिलरली एक अविनाश मिश्रा यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है दैट इज प्रोवाइडेड टू बोथ द पार्टीज। ये नहीं है कि दोनों को क्रॉस एग्जामिनेशन है और दोनों को जो है अपना के रेफर करने का, अपना मतलब पक्ष देने, पेश करने का मौका जो है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद मैरी राजशेखरन और यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास के केस में क्या हुआ? इसमें कई बार क्या होता है, कुछ पर्सनल ग्रजेस होती हैं आपकी किसी पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट। समटाइम्स आप उसको ये सेक्सुअल हरासमेंट बनाने की कोशिश करते हो, वो अपना ग्रजेस निकालने के लिए। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या पर्सनल फ्यूड्स जो हैं आपके, नॉट गेटिंग अलोंग विद सम ऑफ योर कोलीग वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट। ऐसे ही ऑरेलियो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा के केस में क्या है, बेसिकली इसने हाईलाइट किया था कि एजुकेशन सेक्टर में देयर इज अ वाइड स्प्रेड नॉन कंप्लायंस। तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है? वाइड, हमको अपना कुछ का जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करके, या फिर ऐसे ये जो कैरियर सेशंस हैं वो हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, सो दैट उनको गवर्नेंस पोस्ट के बारे में बता के एंड कंप्लायंसेस के बारे में। नॉर्मली आई बीन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो बोलते हैं हमारे तो अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हमारा मिनिस्ट्री से प्रेस्क्राइब्ड है, हम तो उसी को करते हैं। सो वो बहुत कम तैयार होते हैं पोस्ट को की कंप्लायंसेस करने के लिए। आई हैव आल्सो बीन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वी नीड टू टेल देम कि भाई ये जो है आपको, आपके ही फायदे के लिए है ये जो है, और कल को अगर कुछ होता है सो देर आर द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट ऑल्सो, सो you need to do it basically. That's all from my side. Now I think I have before time I have finished my session. Absolutely, ma'am. Actually, So I it's a was still, Janmashtami, so everybody will be busy. I believe, along with me, all the participants were stuck to the screen, right? You were Yeah. so good, and it was so in depth, right? So we were totally stuck. We were looking for many more insight that will about to come, right? But anyhow, ma'am, it was a very, I will say, very indeed, a very insightful discussion which we had from your end, right? And definitely, it will be helping all our participants, right, to have more key takeaways with respect to POSH. And yes, the slides which you have run with respect to the opportunities for company secretaries and how they can like start this domain of POSH was really insightful, ma'am. I believe that would have helped
many of us to take this domain forward, right? Ma'am, just due to paucity of time, I will be quickly rushing to question answers, which are there are few questions which have popped up in the chat box. If you allow, we can take it one by one. Yeah, sure. Yeah. First one is by Miss Vanshika that, ma'am, can the head office IC committee member become the member of branch office IC committee member? Head of the IC committee of the registered office can also become the head of the IC committee of the branch. Yes, If branch office. there is no senior lady in the branch office, there's of course, yes, she can become. Okay, okay. The next question is, after completion of tenure of ICC, all members of ICC will be replaced? After technically, yes, all after a tenure of 3 years, all the members needs to be changed to new members. But sometimes in the company, if there suppose there are no senior lady, other than the lady which was there in the she was heading as the chairman of the IC committee, then some of the members can continue. But ideally, it's better to change, if possible, the entire members. Okay. Is the training to staff as well as ICC mandatory under the Act? Sorry? Is the training to the staff as well as the ICC members mandatory under the Act? Yes, it is mandatory under the Act. Okay. Is there any limit to become external member? No. Okay. Does POSH include Limit to interviews? become the internal member, minimum is 4, but maximum there is no limit prescribed. Okay, okay. Yeah. Does POSH include interviewers and interviewees? POSH include interviewers, the people who are taking the interview, or the people who are giving the interview? Does it include both of them? I don't understand the question. What exactly the question? POSH include? Does POSH include interviewers, those who are taking the interview of any candidate, right? And along with, does the POSH include the interviews also, those who are giving the interview? In case of the redressal, they're asking for the while they are conducting the inquiry, then they are asking for the interviewers and interviews. I think the question is not complete, but I am answering. I think whosoever asks is trying to ask that when we are conducting the inquiry and there is an IC committee meeting is going on, and then we need to take the interviewer of the both will be there. Na? The person, suppose I am taking the interview, I'm taking your interview, so you will also be there. Because you are a witness, I'm taking your interview. I'll be taking the interview of the witnesses and the respondent or the committee. So one by one, they all will not be one time present. They will take it separately, but one by one. Okay. The next question is, a professional become external member in how many organizations? In how many? Organization. There is no limit as of now in the Act, there is no limit. Okay, okay. Next question is, ma'am, after office timing, if male employee texting out of office talk or forcing female employee to come office on holidays, is this covered under POSH? Yes. Okay, okay. Ma'am, can you give your insight on SheBox portal? Yeah. Yes, sorry, I forgot to tell. In the beginning, I spoke something about the SheBox portal. Basically, it's a government portal, SheBox portal, and in which all the organization, it's not mandatory. There is a different opinions going on whether it's mandatory, because a lot of notifications are coming for the UP government. Also, it's coming that it is mandatory, and in some other states, it's not. So there is a lot of deliberation going on. So the conclusion normally what we have taken is that it is not mandatory as of now, but optionally you can register it. It's a good thing. By registering, the first you need to go to the website SheBox portal, and then you need to register as the organization as head office under the option head office registration. And then once you register, they will ask for the email ID, address, and all, and the company name. And once you register, then they will send a login ID and password to your registered email ID. And there is some delays in receiving that email ID and the password, then you need to follow up on their help desk. There are
few numbers prescribed on the help desk, then you can call them and tell them that I have filled this for this organization. I have not yet received the login ID and password. And then you can get the login ID and password. And then you can fill rest of the detail that you can add your IC committee members and the other details. And some details they're capturing from, I think, the district office also. So once you get the login ID, you can see a lot of details about your company on that portal. And further, if you want to file a complaint, any employee want to file a complaint, they can file a complaint on the SheBox portal also. Ma'am, we have received the clarity with respect to the question which we have asked regarding the interviewers. She was basically asking for about the job interviewers. If vulgar questions are asked from the interviews. Vulgar questions are asked from the interview. In the interview, the vulgar question is asked by the interviewer from the interviewees, the person who is giving the interview. That of course she can file a complaint. She can file a complaint under the sexual harassment of that company. Okay. Right. Any other questions from the participants? I believe, ma'am, it has been so well explained during the last 1 hour that not much question is left from the participant end, right? Especially even I had few questions that has been very well clarified by you during your PPT run. So I believe it's bring us to the conclusion of this webinar. And I will request Sudhanshu Singalji. He is a former convener of Najafgarh Study Circle and very dedicated professional, right, and helping the company secretaries and other professionals in his domain to please take it forward and give the a vote of thanks and certificate of appreciation to the ma'am. Thank you so much, Abhinavji. Yeah. Sudhanshu ji, over to you. You are on mute, Sudhanshu ji. I'm on mute? No, ma'am. Yeah. Yeah. Please, I think now, is it audible? Yeah, it's audible, Sudhanshu ji. Thanks, Abhinav sir. Thanks giving me for this opportunity. And I believe an empowered workplace is one where respect is the foundation and awareness is the safeguard. With this thought, I, CS Sudhanshu Singhal, take this opportunity to extend my heartful thanks to CS Shukla Bansal ma'am for delivering such a wonderful session and insightful session on POSH. Thank you so much. Your word has not only enlightened us on the legal and practical aspects, but also inspired us to contribute towards building safer, inclusive, and respectful workplace. As a token of our gratitude for your valuable time and guidance, we are pleased to present you with the certificate of appreciation. Thank you so much. Grateful, Sudhanshu. Thank you, ma'am. Grateful, Abhinavji. Thank you once again, for your gracious presence and for sharing your expertise knowledge. Thank you very much. Thank you. I'll be happy to answer any question if comes subsequently. Also, Abhinavji, you can send it. Sure. You can email it to me. I'll be happy to answer those also. Sure, ma'am. Sure. Thank you. It was nice conducting a session with you. It was wonderful. Thank you so much. Pleasure was all ours, ma'am, and thank you for sparing your time and giving us that support, to be very honest. Having a speaker with such a versatile experience is always you can say, a proud moment for us, right? And we are looking forward to your support in future with respect to, again, many upcoming webinars. As I can see, you are writing a book on CSR. So definitely we will be wanting you in future again to come on this platform and share your valuable insight on CSR also, ma'am. Yeah, thank you. And I'm looking for a publisher. If you come across anyone, just let me know. Sure, ma'am. Definitely. Me, Sudhanshu ji, and any other who are in this domain, if they can come up with any publisher, then please do contact with ma'am. And yes, ma'am, just to end this on a high note, so happy Janmashtami to all. And yes, POSH is not just a law. It's a culture of respect and dignity. Just as Lord Krishna stood by Draupadi in her moment of need, we too must stand by every woman, ensuring a safe and respectful workplace. Let us remember, protecting dignity is the highest form of dharma. Happy Janmashtami to all of you, and thank you. Thank you very much.
Happy Janmashtami. Thank you so much, everyone. Thank you, Abhinavji. Thank you, Sudhanshu ji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, participants, for joining. I know it has been a Thank you, very everyone. busy day. Thank you for joining.